spontaneously, मतलब which take place on its own or due to spontaneous redox reaction taking place, the chemical energy is converted into electrical energy. तो chemicals में जो energy stored होता है that is converted into electrical energy. तो chemical energy converts into electrical energy. और दूसरा टाइप का redox reaction होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसमें we supply electrical energy to carry out non-spontaneous chemical reaction are carried out by supplying chemical reaction. ठीक है, तो दो टाइप का redox reaction होता है, spontaneous and non-spontaneous. तो क्लास हमें दोनों के बारे में डिस्कस करना है डिटेल में. तो let us start with the non-spontaneous redox reaction. Okay, तो क्लास ये सब डिवाइसेस इसमें spontaneous या फिर non-spontaneous redox reaction होता है, those devices are called as the electrochemical cells. We call those devices as electrochemical cell. ठीक है? Okay. So class, let us discuss first type of electrochemical cell. जहाँ पे क्या होगा? Non-spontaneous redox reaction. So class, carefully, ये question बहुत ज़्यादा important है, and that is almost 25% of the chapter. So class, now we have to discuss one process. समझो हमारे पास एक beaker है. We have one beaker. In that beaker, we take molten solution of NaCl. Class, what is molten NaCl? So class, NaCl solid होता है. Okay. So if you heat NaCl very very strongly, so NaCl melts, and NaCl melts, and on melting it forms cations and anions. Right? So NaCl on melting form cations and anions. So that molten NaCl, okay, is called as the molten या फिर fused NaCl. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक हम लोग लेंगे मोल्टन NaCl. वो कैसे रहते हैं? तो एक NaCl solid, heat it very strongly, so NaCl melt and become NaCl liquid, and in liquid state that NaCl separates into cations and anions. तो यहाँ पे देखो वाटर का एक भी ड्रॉपलेट नहीं है, it is completely NaCl. यहाँ पे वाटर का एक भी ड्रॉप नहीं है, it is pure NaCl, right? We don't have water here, so it is pure NaCl. तो Na plus and Cl minus, यहाँ पे वाटर बिल्कुल नहीं है, तो लिक्विड और लिक्विड. तो प्लस दिस NaCl which is liquid state is called as a molten या फिर fused. this molten NaCl और fused NaCl. ये हम लोगों ने इस वेसल में molten NaCl, ठीक है, या फिर इज आल्सो कॉल्ड एज द fused NaCl. So this is vessel containing molten NaCl. Okay. Now in this beaker we insert two rods made up of graphite. So is one rod made up of graphite, and this is one more rod made up of graphite. So we put two rods made up of graphite. So plus rod can be graphite rod or rod can be platinum rods. So we insert two rods made up of graphite or platinum, and then we connect these rods to the battery, DC battery. आपको मालूम है DC battery? DC मतलब डायरेक्ट करंट. मतलब बैटरी दो होता है, AC भी होता है और DC होता है. तो AC बैटरी में बाद में यूज करना है, फिलहाल यहाँ पे DC बैटरी यूज करते हैं विद डायरेक्ट करंट, ठीक है. तो क्लास बैटरी हैज टू टर्मिनल्स, DC बैटरी हैज टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट. तो बैटरी को दो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. तो जैसे आप बैटरी को ऑन करोगे, मोमेंट यू स्विच ऑन द बैटरी, दिस rod which is connected to the positive terminal become positively charged, and this rod which is connected
negative terminal become negatively charged, right? So positive charge and negative charge. And class solution में कौन सा आंसर? solution में आंसर Na plus and Cl minus बहुत सारा है. So I taken large quantity of NaCl, okay, molten state में, और उसके अंदर 2 rod लगते हैं हम लोगों ने, and we are connecting both rod to the battery. One rod is connected to the positive terminal of the battery, another rod is connected to the negative terminal of the battery. Okay. अब जैसे ही हम लोग बैच स्विच ऑन करेंगे, पहला क्वेश्चन है Cl माइनस आयन कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव के पास या नेगेटिव के पास? Cl माइनस, Cl माइनस आयन अट्रैक्टेड Positive. पॉजिटिव, right? तो Cl माइनस गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो Cl माइनस बैटरी इसको अट्रैक्ट करेगा. प्लस बैटरी के पास फोर्स होता है, बैटरी प्रोवाइड द फोर्स. बताऊंगा इसके बारे में आपको. क्लास क्या बोलते हैं बैटरी के फोर्स को? एवरीबॉडी नो. तो बैटरी प्रोवाइड्स फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द Electromotive force. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. हाँ, तो क्लास Cl माइनस यहाँ पे जाएगा इस पॉजिटिव रॉड के पास. हाँ क्लास, अभी कल का लेक्चर मुझे देखना आपको कितना समझा. वहाँ पे जाके Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो Cl माइनस यहाँ पे जाएगा तो बैटरी उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए फोर्स करेगा या गेन करने के लिए? कुछ क्या आंसर दो, लूज या गेन? यस एनीवन? बैटरी में फोर्स, इसने आंसर तो दे दिया था. एक बार वापस. Lose. लूज, वेरी गुड. रीजन हमने कल देखा था, नेगेटिव आयंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, राइट? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव आयंस अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन लूज करने के मजबूर किया जाएगा. तो Cl माइनस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम Cl, राइट? प्रोसेस ऑक्सीडेशन. प्लस हमारे पास क्या इस बीकर में एक ही Cl माइनस आयन है? नहीं ना, बहुत सारे हैं. तो क्लास और एक Cl माइनस जब उस रॉड के पास जाएगा और वहां पे उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए फोर्स किया जाएगा. वन मोल Cl माइनस आयन गोस देयर, force to electron become Cl, right? So what is net reaction then? So net reaction will be net reaction क्या होगा? तो ऐड करेंगे तो 2Cl minus gives you class Cl plus Cl will be Cl2. Cl2, good. So Cl plus Cl gives you Cl2. Okay. Plus इलेक्ट्रॉन बराबर है. तो Cl plus Cl gives you Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब पहला क्वेश्चन, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? क्विकली. Oxidation. वेरी गुड. रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर Loss. 1 to 0. यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज 0 है, मतलब क्लोरीन हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ. तो क्लास कौन सा रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्विकली. Positive rod. पॉजिटिव रॉड. Positive. अभी ये भूल जाओ कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है. आपको याद रखना है कि द रॉड बोलते हैं इलेक्ट्रोड हम लोग, जिसके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज द एनोड. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनोड. तो बस एनोड एंड कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया जाता. जिस रॉड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज द एनोड. तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड ऑन व्हिच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस. तो एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन. गॉट इट? ओके. तो क्लास यहाँ पे क्या होगा? Cl माइनस यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl बनेगा. और एक Cl माइनस यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनेगा. तो जब 2 Cl माइनस जाएंगे तो Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इस रॉड के ऊपर क्लोरीन गैस जमा होता जाएगा. तो यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होता रहेगा और रॉड के ऊपर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे, राइट? रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे. गुड. तो दूसरा क्वेश्चन, Na प्लस कहाँ पे जाएगा? Na प्लस यहाँ पे जाएगा, राइट? टुवर्ड्स Negative electrode. नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ओके. Na प्लस, मुझे तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है? Na प्लस Gain. क्या गेन? क्यों गेन करेगा? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट? उसके पॉजिटिव चार्ज है. क्लास को इतना कितना ही फोर्स करो, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? क्या करेगा? गेन करेगा, राइट? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा. ओके. तो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा? वो Na प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा क्या? क्या बनेगा? Na बनेगा. Sodium atom.
हाँ मेटल, सोडियम मेटल बनेगा। हाँ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ओके, ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज कितने हुआ है? 2। दो, तो नीचे दो। गेन भी दो होने चाहिए ना, हाँ बैलेंस रिएक्शन बैलेंस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो करने के लिए, पर एन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। पर रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन। क्लास क्या रीजन है, एन यहाँ पे प्लस था और एन यहाँ पे 0 है, तो रिएक्शन इज रिडक्शन, बराबर है। तो रिडक्शन रिएक्शन हुआ by losing, sorry, by gaining 2 electrons, बराबर है। तो Na become Na plus become Na by gaining 2 electrons. The reaction is reduction reaction. Okay. तो क्लास एक रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन। तो क्लास जिस रॉड के ऊपर रिडक्शन होता है वी कॉल दैट रॉड एज अ कैथोड। कैथोड। वी डोंट केयर वो पॉजिटिव नेगेटिव है, हमें इतना याद रखना है द इलेक्ट्रॉन ऑन व्हिच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एज अ कैथोड। कैथोड। तो ये कैथोड है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्लास पूरे सेल के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, पूरे सेल के ऊपर? तो क्लास पूरे सेल के ऊपर जो रिएक्शन उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्लास कैसे लिखेंगे, तो एट एनोड आप देख सकते हो, एट एनोड क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो 2Cl माइनस ने आपको दिया Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड रिडक्शन हुआ तो 2Na प्लस। क्लास ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले कहाँ से कैथोड को, Na प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन मिले कहाँ से, बोलो कहाँ से मिले 2 इलेक्ट्रॉन? जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे वो उसने ले ली। हाँ किसने लूज किए थे, Cl। क्लोरीन। क्लोरीन ने निर्मा से जो इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। तो बैटरी का, बैटरी के पास क्या होता है, बैटरी के पास होता है ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बैटरी का होता है इधर का जो जहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं इस रॉड के ऊपर, पॉजिटिव से नेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बैटरी पंप कर रहा है, उठा के यहाँ से बैटरी यहाँ पे भेज रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए भेज रहा है वो, Na प्लस के लिए भेज रहा है, एग्री। तो 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Na। तो एक एट एनोड रिएक्शन था ऑक्सीडेशन, एट कैथोड रिएक्शन था रिडक्शन। और क्लास दोनों रिएक्शन अपन ऐड करोगे तो पूरे सेल पे हो रहा है रिएक्शन, क्या बोलते हैं रिएक्शन को, रेडॉक्स, राइट। तो क्लास इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो क्लास इफ यू ऐड दिस टू रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस gives you 2Na plus Cl2. This is redox reaction, ठीक है। तो क्लास अब सोचो अगर हम लोग बाहर से ये बैटरी यूज नहीं करते, अगर ये बैटरी नहीं होता यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बैटरी यूज नहीं करते, यहाँ पे हम लोग बैटरी नहीं लगाते, इधर नो बैटरी हो गया, अगर यहाँ पे बैटरी नहीं होता तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो पाता है नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। अगर बैटरी नहीं होता तो रेडॉक्स रिएक्शन हो पाता नहीं होता? नहीं हो होता। पाता, राइट। नहीं। तो क्लास रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रहा है या बाहर से कुछ आपको जरूरत पड़ रहा है, मतलब एक्सटर्नल हेल्प का जरूरत पड़ रहा है, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए आपको, चाहिए, हाँ। राइट। इट इज नॉट टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन, so this redox reaction is, आप क्या बोलोगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे है, नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, राइट, is force, right, to take place by supplying electrical energy, right। हमने बाहर से बैटरी लगाया, तो क्लास we call such process as electrolysis। क्या बोलते हैं उसको, electrolysis। तो electrolysis is a process in which non-spontaneous redox reaction is forced to take place by supplying electrical energy from outside। और क्लास ये पूरा डिवाइस जहाँ पे रिएक्शन हुआ, पूरा डिवाइस जहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ, we call entire device as electrolytic cell। क्लास एक बार देख लो 2 मिनट के लिए।
cell as the electrolytic cell and process called as the electrolysis. एक बार देख लो. तो डेफिनेशन क्या होगा? Process in which an electric current is used textbook definition. Electric current is used to bring about non-spontaneous redox reaction or process in which electrical energy is converted into chemical energy, or process in which electrical energy is converted into chemical energy. We call that process as the electrolysis, and the device in which electrolysis is carried out is called as the electrolytic cell. ठीक है? तो क्लास मुझे बताओ यहाँ पे कितना रिएक्शन है? इस पूरे इसमें कितने रिएक्शन है बोलो क्विकली. यस, इलेक्ट्रोलिसिस में कितने रिएक्शन हो रहे हैं? 3 हाँ 3 कितने? 3 कौन से हैं? 2. पहला Cl से दो ऑक्सीडेशन कम होता है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तीसरा तो वो उनका नेट रिएक्शन है, थोड़ी रिएक्शन का टाइप है वो तो ऐड किया हम लोगों ने. ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन. 2 हाँ तो दो टाइप का रिएक्शन है, कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है. तो क्लास तो देखो इस चैप्टर में बोलने का एक तरीका है, मतलब तो जो रिएक्शन होता है कौन सा? 2Cl माइनस gives you Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये कौन सा रिएक्शन था? ऑक्सीडेशन. बराबर. एंड 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you 2Na, राइट? रिडक्शन. तो प्लस इसके आगे आप चैप्टर में बहुत बार देखोगे कि पूरा रिएक्शन रिडॉक्स है, राइट? दोनों मिला के. इफ यू ऐड दिस टू रिएक्शन, टोटल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है. तो प्लस बोलने का तरीका है, तो वी कॉल दिस रिएक्शन एज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. प्लस रिएक्शन आधा नहीं है, रिएक्शन पूरा ही है, पर बोलने का तरीका है क्या? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. और इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन. रिएक्शन आधा नहीं है, वापस सुनो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो एक सेल में दो रिएक्शन होता है, तो एक रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन. समझा सब लोग को? प्लस आपको बोल रहा हूं रिएक्शन इज नॉट हाफ रिएक्शन. रिएक्शन पूरा होता है. ऑक्सीडेशन पूरा रिएक्शन है, रिडक्शन एक पूरा रिएक्शन है. पर सिंस सेल में दो रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है. तो क्लास तो सबके लिए एक सिंपल क्वेश्चन, मुझे आंसर दो. इलेक्ट्रोड क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? क्विकली. यस, मेरा आवाज आपका आ रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रोड? हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोड क्या होता है? ठीक है, मैं आधा स्टेटमेंट लिख दो, आधा आप कंप्लीट करो. द इलेक्ट्रोड्स are the surfaces on which, इसके आगे तो बोल सकते हो आप. इलेक्ट्रोड्स आर द सर्फेसेस ऑन विच सर यूज्ड टू जनरेट करंट ना. क्या? यूज्ड टू जनरेट करंट और सप्लाई. यूज्ड टू जनरेट अ करंट और सप्लाई. किधर करंट जनरेट कर रहे हैं बाबा? हम लोग करंट सप्लाई कर रहे हैं बाहर से. वही मतलब सर, मतलब वही कैसे हो गया? टाइप करेंगे तो उसको कैरी सप्लाई ऑन करना और जनरेट करना एक ही होता है. करना. हम लोग बाहर से करंट सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे करंट जनरेट नहीं होता. electrodes are surfaces on which there is either positive or negative charge.
हाँ नहीं, वो तो चार्ज से तो हम लोग उसका डिसाइड नहीं करते इलेक्ट्रॉन को। Reaction take place. हाँ वेरी गुड, कौन सा रिएक्शन रहे? Reduction, oxidation. हाफ Reduction of. हाफ और क्या, एक इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन होता है, या तो ऑक्सीडेशन हाफ या Reduction तो of. रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस। समझे हम लोग को? तो इलेक्ट्रोड ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस। प्लस अगर हम लोग देखोगे तो ये दो इलेक्ट्रोड दिखा आपको, तो क्लास एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन, राइट? तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन, हम लोग उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो क्लास तो ये जो दिख रहा है आपको एनोड, तो ये सरफेस है जिसके ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कैन सिंपली से ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये दूसरा सरफेस जिसके ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लास रिडक्शन रिएक्शन बोलो, रिडक्शन हाफ बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर टेक्स्ट बुक में कन्वेंशन रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो कैथोड इज अ सरफेस ऑन विच रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस एंड एनोड इज अ सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है क्लास? तो इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस ऑन विच ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रोड खुद केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं? इलेक्ट्रोड्स तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिए हमने कार्बन ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड लेते, राइट? हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड ग्राफाइट, दोनों इलेक्ट्रोड ग्राफाइट के बने थे। तो क्लास क्या इलेक्ट्रोड ने केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया था? क्या खुद इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व था? ये दोनों इलेक्ट्रोड में कोई भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व था? हाँ या था? नहीं 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 था ना। क्या हुआ? कार्बन का कुछ रिएक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं. नहीं ना, सिर्फ Cl माइनस यहाँ पे आया, इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रोड ने वो इलेक्ट्रॉन उठाया और दूसरे इलेक्ट्रोड को लेके जाके दे गया। बराबर? देखो क्लोराइड गया कहाँ पे? एनोड पे। एनोड ने वहां से इलेक्ट्रॉन खींच के वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड को प्रोवाइड किए। तो कार्बन का यहाँ पे कोई रोल था? नहीं था ना? एवरीवन हाँ या ना? तो मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट लेता है नहीं लेता? बोलो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या इलेक्ट्रोड खुद पार्ट लेता है कि नहीं लेता? क्लास आपका आंसर चाहिए मुझे। नहीं लेता है। नहीं लेता, राइट? इलेक्ट्रोड नहीं पार्ट नहीं लेता लेता। है। क्लास हम ऐसे कुछ इलेक्ट्रोड देखेंगे जो अपने क्लास में नहीं, जो खुद इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, देखेंगे। तो क्लास इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट ले भी सकता है या फिर इलेक्ट्रोड रिएक्शन पार्ट ले भी सकता है फिर नहीं भी ले सकता है। इस केस में ले रहा था नहीं ले रहा? इस केस में नहीं ले रहा, राइट? तो वी कॉल सच इलेक्ट्रोड एज अ, क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट electrode. What is an electrode? The electrode we do not take part in electrochemical reaction, right? The electrodes which do not take part we do not take part in electrochemical. Electrochemical मतलब oxidation and reduction, right? We do not take part in electrochemical reaction are called inert electrodes. तो अपने क्लास में इलेक्ट्रोड ही है। हाँ क्लास जो लोग JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो पार्ट लेते हैं। मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में चैप्टर के एंड में, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और ऐसे कुछ इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, वी कॉल द इलेक्ट्रोड एज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो क्लास फॉर टाइमिंग अपना जो चैप्टर सिलेबस चल रहा है बोर्ड के एग्जाम के लिए, उसमें अपने इलेक्ट्रोड्स कैसे रहेंगे? अपने इलेक्ट्रोड्स इनर्ट। इलेक्ट्रोड itself do not take part in chemical reaction. We call such electrode as a inert electrodes. Okay. Class now very simple definition. Sorry, very simple question to all of you. What is cathode? Quickly, cathode क्या होता है? Electrode in which reduction takes place. Okay, the electrode which reduction at which ना at which as well. क्योंकि अपना इलेक्ट्रोड इनर्ट है तो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होता है? रिडक्शन टेक प्लेस, राइट? इलेक्ट्रोड at which क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन occurs, right?
is called as the cathode. Okay, how? By as क्या? Electrons are gained by some species at cathode. Agree करते हो class आप? So what is anode? Quickly, anode. Electrode at which Which oxidation takes place, right? reaction occurs. Electrode At which oxidation occurs as क्या? Electrons are क्या? बोलिए. lost by some Lost by some species at anode. तो at anode पे क्या होता है? Electrons are lost by some species. Got it everyone? So cathode is an electrode at which reduction takes place. Anode is an electrode at which oxidation takes place. तो at cathode कोई भी species आके electron gain करता है, and anode कोई भी species आके अपना electron lose करता है. तो cathode and anode. So at cathode reaction taking place a reduction half reaction, and at anode reaction taking place is a oxidation half reaction. तो हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? NaCl. कौन सा NaCl था? वो मोल्टन. क्लास में पानी था थोड़ा भी? प्लस इस NaCl में पानी था? नहीं था. ठीक है. हाँ, तो हम लोग देखेंगे अभी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. MCQ के लिए एसिडिफाइड वाटर. तो बस अभी ये आपके बुक में नहीं है एसिडिफाइड वाटर इलेक्ट्रोलिसिस. जो लोग जेडे बलीविंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिफाइड वाटर. एक्चुअली NaCl भी है पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिफाइड वाटर. तो हम लोग क्या करेंगे? बीकर में लेंगे वाटर, प्योर वाटर. हाँ, प्लस प्योर वाटर इज गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Pure water is good conductor or bad conductor of electricity? Bad conductor. Bad conductor. Reason pure water do not form cations and anions. It is extremely very Stable compound. weak electrolyte, right? Water बहुत weak electrolyte है. तो इतना weak electrolyte है कि उसने बना हुआ है cations H plus and anions are negligibly small. वो इतने कम होते हैं कि वो electricity conduct करने के लिए sufficient नहीं होते. तो देखो when I say electricity फ्लो, मतलब किसका फ्लो होता है? चार्जेस का, कैटायंस एंड अनायंस का. तो वाटर कैटायन अनायंस नहीं बनाता तो हमारे पास H+ एंड OH- आयंस नहीं होंगे अगर हमारे पास बीकर में क्या है? प्योर वाटर. ठीक है. तो अभी हम लोग बीकर में क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रोड लेंगे, दो रॉड लेंगे. तो दिस फर्स्ट रॉड, फिर एक वन मोर रॉड. एवरीवन नो टू रॉड्स. तो ये दो रॉड लिए हम लोगों ने बीकर में. So we take two rods in the beaker. हाँ, and class water good conductor नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? वाटर में हम लोग थोड़ा डालेंगे NaCl. सल्फ्यूरिक एसिड. NaCl में कल बताऊंगा आपको क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा चेंज किया उसमें. वाटर में डालेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. क्लास H2SO4 इज अ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग और वीक. H2SO स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है. Strong. H2SO पानी में डाला तो क्या होगा? इमीडिएटली टू डिसोसिएट कंप्लीटली, राइट? एज H+ and SO4. प्लस आयंस एंड OSO3H minus. SO4 minus 2 आयंस, राइट? तो H+ आयंस एंड SO4 minus 2 आयंस बनेंगे. हाँ, तो क्लास जैसे आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डालोगे तो हम लोग बोलेंगे इस वाटर को एसिडिफाइड वाटर. क्या बोलेंगे हम उसको? एसिडिफाइड वाटर. तो वाटर जिसमें हमने क्या ऐड किया है? सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्लास सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से होता क्या वो देखते हैं हम लोग. तो क्लास वाटर जो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कैटायन आयन नहीं बनाता, राइट? पर जैसे हम उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बनाए डालेंगे, वाटर नाउ डिसोसिएट एंड फॉर्म कैटायंस एंड अनायंस. तो जो वाटर पहले कैटायन आयन नहीं बना रहा था अभी वो बनाना शुरू करेगा बिकॉज प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वाटर में हम लोग को इलेक्ट्रोड ऐड करेंगे लाइक सल्फ्यूरिक एसिड. वाटर क्या करता है? कंडक्ट करना शुरू करता है. समझे आपको? वाटर बिकम गुड कंडक्टर क्योंकि हमने उसमें क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड. तो क्लास अभी वाटर बनेगा कैटायन अनायन. व्हिच कैटायंस? H+ एंड अनायंस कौन सा? OH-. अभी वाटर कैटायन और अनायन बनाएगा.
ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्योर होता तो बिल्कुल नहीं बना था और वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर पाता, पर वाटर में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऐड करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर बिकम गुड कंडक्टर। तो हम इसको बैटरी लगा देंगे, डीसी बैटरी, डायरेक्ट करंट बैटरी। प्लस ये बिकम पॉजिटिव, हमने इसको पॉजिटिव बैटरी को कनेक्ट कर दिया टर्मिनल को, and this will become negative. We have connected it to the negative terminal of the battery. So my question is, in this solution, how many types of cations are present? Cations. How many types of cations are present? तो क्लास H2O से आपके पास H प्लस है, बराबर है cations, and H2SO से आपके पास cations है H प्लस, राइट? तो आपके पास कटायन एक ही तरह का है सब, अभी H प्लस H वाटर का हो या H2SO का फर्क नहीं आता है। तो हमारे पास कटायन कौन सा है? H प्लस है, राइट? अगर आपके पास अनायंस कौन से टाइप, कितने टाइप के हैं यहाँ पे? अनायंस कितने टाइप के हैं? दो टाइप, राइट? वाटर से OH माइनस, बराबर है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 माइनस 2, ठीक है? तो आपने बैटरी लगा दिया, डीसी बैटरी। हाँ, तो बस जैसे आप बैटरी ऑन करोगे तो ये H प्लस आयन कहाँ पे जाएंगे? टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट? एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन जाएंगे? OH भी जाएंगे एंड SO4 माइनस 2 आयन भी जाएंगे, दोनों भी नेगेटिव, राइट? तो दोनों भी जाएंगे। तो बस क्वेश्चन इज OH एंड SO4 माइनस 2 में इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? OH करेगा, SO4 करेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, नेगेटिव आयंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, एवरीवन नोज दैट। तो देखो OH भी जाएगा, देखो ये समझो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसके पास OH भी जा रहा है और यहाँ पे SO4 माइनस 2 भी जा रहा है, राइट? दोनों भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेंगे। तो प्लस कौन कर पाएगा? OH या SO4 माइनस 2? तो उसके लिए कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है डिस्चार्ज पोटेंशियल। कौन सा कंसेप्ट है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो क्लास मतलब क्या, इन दोनों आयन में से जिस आयन को यहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज होने के लिए कम पोटेंशियल लगेगा वो आयन पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो क्लास OH माइनस को यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा और SO4 माइनस 2 को यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने का जो पोटेंशियल लगेगा, तो OH का वैल्यू कम है, OH को कम लगेगा पोटेंशियल क्या होने के लिए? यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए। दोनों भी कोशिश करेंगे, OH भी कोशिश करेगा और SO4 भी कोशिश करेगा। और कौन से आयन को यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के लिए? प्लस डिस्चार्ज मतलब अगर एनोड है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होने के लिए और कैथोड है उसके ऊपर रिडक्शन होने के लिए। तो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए एक जनरल टर्म कौन सा यूज करते हैं? डिस्चार्ज। तो अपना फिलहाल बात चल रहा है एनोड पे, जहाँ पे अनायंस क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो प्लस OH माइनस और SO4 माइनस में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? OH का, SO4 का? क्विकली OH तो इजी किसके लिए डिस्चार्ज होना? OH को या SO4 को? OH बता ना, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, उसको कम पोटेंशियल लगेगा डिस्चार्ज होने के लिए। तो आप जो पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो सबसे पहले कौन भागेगा यहाँ पे? OH, और क्या करेगा? यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। क्लास एनीबॉडी, अगर आपको कल का लेक्चर थोड़ा भी याद है, हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस टेक्स प्लेस? एनीबॉडी? टेबल है आपके पास पूरा कल का, हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस टेक्स प्लेस? H2 और वो एक इलेक्ट्रॉन बनता है। रिएक्शन देख के बताओ। OH अगर आपको याद है तो 2OH माइनस गिव्स यू H2O। आपको बोला था, हम आपने सामना किया था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2O plus half O2 plus 2E। बना रही है? या सर। हाँ, ये आपको मैंने बोला था, याद रखो, ये रिएक्शन आपको बहुत बार लगेगा। तो कल का लेक्चर मैंने आपको 1 घंटा ऐसे टाइम पास नहीं था हमारा, वो हर बार हमें वो सब चीजें लगती रहेंगी। तो आपको कल का लेक्चर बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर करके रखना है। तो 2OH माइनस गिव्स यू H2O plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है? बस कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा बोलो? कैथोड पे कौन जाएगा? H प्लस ही, और कोई है ही नहीं दूसरा कटायन, तो H प्लस जाएगा। तो क्लास यहाँ पे कोई तो कंपटीशन नहीं, तो क्लास H प्लस क्या करेगा बोलो? H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा? H बनेगा। क्लास H होता नहीं, होता क्या? H2 है, तो H2 के लिए 2 राइट? रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन। तो क्लास दो रिएक्शन हो गए आपको, एक एनोड पे रिएक्शन हुआ और एक कैथोड पे रिएक्शन हुआ। तो क्लास जो क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था, व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ electrolysis of acidified
या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, हाँ चलेगा, acidified water. Plus your answer. What are products of electrolysis of acidified water? Anyone? वाटर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। Okay. तो क्लास वाटर तो सोल्यूशन में ऑलरेडी था, राइट? हाँ। तो उसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, तो क्लास हम बोलेंगे ऑक्सीजन एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड, ठीक है? ऑक्सीजन एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट कैथोड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। तो क्लास ये आपके बुक में है नहीं किधर भी, पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है जेडबल प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस H2SO4 सॉल्यूशन। क्लास ठीक है, ये समझा लोगों? हाँ। तो क्लास बोलोगे आपको कैसे पता चला कि OH माइनस एंड सल्फेट माइनस में OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? तो क्लास उसका एक पूरा ऑर्डर है, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ऑर्डर में आपको ये नोट्स के साथ भेज दूंगा, या फिर अगर आपको अभी लिखना है 2 मिनट लगेंगे तो लिख रहे हो अभी? बोलो, आप बोलो। हाँ सर। हाँ सर। लिखो, तो लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो जेई के लिए नीट के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए है थोड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो पहले हम लिखेंगे कैटायंस के लिए, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है वो है Au3+, सबसे कम, उससे ज्यादा है Ag+, उससे ज्यादा है Hg2+, उससे ज्यादा है H+, उससे ज्यादा है Ni2+। प्लस डिस्चार्ज मतलब क्या? एनीबॉडी व्हाट मीन डिस्चार्ज? प्लस बोलो डिस्चार्ज मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी छोड़ पाता है। नहीं, दोनों भी हो सकता है। डिस्चार्ज मतलब या तो कितने जल्दी ऑक्सीडाइज हो पाते हैं या तो कितने जल्दी रिड्यूस हो पाता है। क्लास हमने देखा, हमने रिएक्शन एनोड का रिएक्शन देखा, तो वहां पे देखना था कितने जल्दी ऑक्सीडाइज हो पाता है, राइट? कैथोड पे जाते तो क्या कितने जल्दी रिड्यूस हो पा रहा है। तो क्लास ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के लिए कॉमन टर्म कौन सा है? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो आपके सबके लिए क्वेश्चन है, अगर आपके पास सोल्यूशन में सबके सब आयंस प्रेजेंट है, समझो फॉर एग्जांपल ये सब आयंस प्रेजेंट है, तो सबसे पहले कौन सा कटायन यहाँ पे डिस्चार्ज होगा? सबसे पहले Au3+। हाँ Au3+. Au क्यों? क्योंकि जितना डिस्चार्ज पोटेंशियल कम उतना जल्दी क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता है या तो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो Au3+ सबसे जल्दी होगा। सबसे डिफिकल्ट किसका होगा? सबसे डिफिकल्ट Na+। Li. Lithium. तो क्लास अगर आपके सोल्यूशन में 2 कटायंस है तो कौन सा डिस्चार्ज होगा? तो ये आपको ऑर्डर मालूम है। प्लस समझो सोल्यूशन में H+ होता और Na+ होता, कौन पहले डिस्चार्ज होता? H+ या Na+? अगर आपके पास सोल्यूशन में H+ या Na+ होता? H+. प्लस होता है क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ठीक है? हां, प्लस अभी फॉर अनायंस ये ऑर्डर है I- सबसे इजी, I- उससे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल Br- का है, उससे ज्यादा Cl- का है, उससे ज्यादा OH- का है, उससे ज्यादा NO3- का है, और सबसे ज्यादा तो आपने देखा आपके बीकर में कौन से आंसर अभी OH थे और SO4 थे, राइट? तो किसके लिए ज्यादा इजी था, OH के लिए SO4 के लिए? OH, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था। तो जो लोग भी JEE या फिर नीट के लिए पेपर कर रहे हैं उनके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है एवरीवन? तो चलो एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हो। ट्राई करोगे? थोड़ा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl।
व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, उसको आपको फोर्सफुली करवाना पड़ता है बाय पासिंग एक्सटर्नल करंट। द क्वेश्चन इज what are products of electrolysis of aqueous NaCl? So class, Na plus Cl minus. water is very weak electrolyte, will not form H plus and OH minus if it is pure. But in water, if you add NaCl, so NaCl Na will plus form Cl minus. Na plus and Cl minus. Cl minus, and water also form H plus and OH minus, right? Pure water is bad conductor, but in presence of electrolyte become good conductor. It form cations and anions. Class, now आपके पास कौन से cations है? H plus and Na plus. Plus see the order. ऊपर का order देखो. किसके लिए ज़्यादा easy है reduce होना? H plus को Na plus को? H plus. H plus. देखो आप देखो. H plus. H plus का discharge potential कम है. So it is more easy for H plus as compared to Na plus. तो हम लिखूंगा at cathode. H plus ions accept electron and get reduced to hydrogen, but H does not exist. What exists? H2. So we write 2H plus 2 electron gives you H2. This is reduction at cathode. Class, OH minus and Cl minus. For which ion it is more easy to get discharge? Cl minus. Cl minus. Class, discharge मतलब इस केस में क्या? इस केस में discharge मतलब oxidize, और इस केस में discharge मतलब reduce, right? So Cl minus has more chances to get oxidized as compared to OH minus. So I write at anode. Everybody remember the reaction? बस ये रट्टा मार्क आपको होना चाहिए. 2 Cl minus gives you, बहुत बार आएगा reaction, Cl2 plus 2 electron, right? Oxidation. So now what are products of electrolysis? Everyone, what are products of electrolysis? Hydrogen gas at cathode and what? Chlorine gas at anode, right? So this is there in your textbook. ये अपने textbook में है. Electrolysis of aqueous NaCl. थोड़ा complicated लिखा है उन्होंने. Meaning बहुत simple है. I don't know why they written such complicated things. Such a simple thing, but ठीक है, ऐसा है. तो मैंने आपको simple form में बता दिया. Meaning एक ही है. Okay, done. तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे. इस चैप्टर का आगे का पार्ट, important part. So class, if I say electricity, देखो, when we switch on the battery, what flows? Electricity. हम लोग बैटरी ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है. क्लास, what do you mean by flow of electricity? What do you mean by flow of electricity? Flow of electrons. Flow of electrons. Very good. Everyone, perfect. Flow of electrons, right? हाँ, चार्ज बराबर है आंसर बालाजी, पर चार्ज किस वजह से होता है? Flow of electrons is Flow of electrons, right? The flow of electricity means flow of electrons. Good. So class, if I say in this cell, if one electron flows, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस सेल में से, so that will carry how much charge? मैं बोलता हूँ, if one electron flow from anode to cathode, if there is a flow of one single electron from anode to cathode, tell me how much charge has flown through the cell? So class, this is anode and this is cathode. I say one single electron flow from anode to cathode and complete the circuit. Tell me how much charge has been flown from the cell? unit. सर आप क्या वापस बोलूं? हाँ रिपीट करो. अगर देखो OH यहाँ पे OH जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो के यहाँ पे जाएगा, वहां पे H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बराबर है ना? तो सेल में से अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो इस सेल में कितना चार्ज फ्लो हुआ? 1 coulomb charge. नहीं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सर्किट में से, तो दैट विल कैरी चार्ज
1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। तो ठीक है, तो अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए राइट, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए आपको लगता है? अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए, इफ यू वांट 1 कूलम चार्ज टू बी फ्लोन फ्रॉम द सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? तो x इज इक्वल टू, बोलो, 1 into 1 right, divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 right. तो 1 by 1.6 is 0.625 करके देखो आप, इंटू 10 raised minus 19, ऊपर आएगा तो 19 हो जाएगा, मतलब 6.25 इंटू 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितना 6 into 6.25 into 10 raised to 18 electrons, carry charge 1 coulomb। क्लास क्लियर है आपको? तो 1.6 into 1.6 into 10 raised 19 is the charge on 1 electron. 1.6 into 10 raised 19 is the charge on 1 electron. So 1 coulomb is charge on how many electrons? क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता चलेगा कि 1 कूलम इज चार्ज ऑन 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन। प्लस ये पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, याद रखो 1 कूलम इज चार्ज ऑन 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। तो 1 कूलम इज चार्ज ऑन 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास क्या आप इलेक्ट्रॉन को देख पाते हो? कैन वी सी द इलेक्ट्रॉन? हम इलेक्ट्रॉन देख पाते हैं? नोबडी कैन सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हम लोग देख नहीं पाते। हाँ, और क्लास अगर इलेक्ट्रॉन देख भी पाते तो क्या ये नंबर बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? कौन सा सर? 6.25 बहुत बड़ा नंबर है ना। हाँ, इतने इलेक्ट्रॉन काउंट भी नहीं कर पाएंगे राइट। तो क्लास फिर हमें पता कैसे चलेगा 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में से? यस स्टूडेंट्स, डिवाइस यूज करेंगे ना। क्या यूज करेंगे? डिवाइस। डिवाइस कौन सा डिवाइस है, नाम बोल। ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा, बताता हूँ, डिवाइस भी चलेगा आपका, पर थियोरेटिकली बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। तो क्लास 1 कूलम इज चार्ज ऑन 6.25 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन। एनीबॉडी नो सिंबल फॉर चार्ज? क्लास इस साल अपने बोर्ड के बुक में थोड़ा वाट लगा के रखा है, सिंबल फॉर चार्ज इज कैपिटल Q, और उन्होंने हीट के लिए भी सेम सिंबल रखा है। पहले ओल्ड से बुक में हीट के लिए स्मॉल क्यू सिंबल था और चार्ज के लिए कैपिटल क्यू था, दोनों का उन्होंने कैपिटल ही कर दिया, चलेगा नो प्रॉब्लम। तो कैपिटल क्यू इज अ सिंबल फॉर चार्ज राइट, या फिर उसको हम लोग और बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो तुमने बोला डिवाइस यूज करेंगे राइट, बालाजी ने बोला ना, ओम ने बोला राइट। मैंने सर। हाँ, डिवाइस यूज करेंगे। तो क्लास मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। क्लास हमने यहाँ पे जो बैटरी लगाया राइट, ये बैटरी कैसा बैटरी है? डीसी बैटरी, नाम सुना डीसी बैटरी? ये बैटरी कैसा बैटरी है? डीसी। तो डीसी बैटरी का स्पेशली क्या होता है, आपका मोबाइल का जो बैटरी होता है डीसी बैटरी होता है, तो क्लास वो स्टार्ट से एंड तक जब 100% चार्ज है तभी भी, और जब 1% चार्ज है तभी भी आपको प्रोवाइड करता है कांस्टेंट करंट। कभी आपने देखा मोबाइल का बैटरी 1% पे आ गया है, इसलिए वो देखो अंदर वो थोड़ा सेटिंग होता है ऑप्टिमाइजेशन का, अदरवाइज आप कोई सेटिंग नहीं करोगे तो 100% पे आपका मोबाइल जितना एफिशिएंटली काम करेगा उतना 1% में भी काम करेगा, और खत्म होगा तो एकदम पूरा जीरो डेड, एकदम ऑन द स्पॉट डेड। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा बैटरी मोबाइल का थोड़ा थोड़ा ऐप बंद होना शुरू हो गया और मोबाइल डेड हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। गेट इट? यू गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा डीसी बैटरी का स्पेशली होता है, डीसी बैटरी प्रोवाइड्स यू कांस्टेंट करंट। तो क्लास तो बैटरी के ऊपर आपने देखा है लिखा रहता है, मेरे मोबाइल की बैटरी को लिखा है 4500 मिली एम्पियर, मेरे बैटरी के ऊपर लिखा है, मैंने देखा था, मतलब स्पेसिफिकेशन में 4500 मिली एम्पियर राइट। तो आपके हर एक डीसी बैटरी का करंट कैपेसिटी फिक्स होता है, वो कितना करंट प्रोवाइड करेगा आपको मालूम होता है, ठीक है। तो क्लास समझो मेरे पास जो बैटरी है, ये वाला मुझे बैटरी है, मेरा बैटरी है वो जो प्रोवाइड करेगा 1 एम्पियर, कितना करंट प्रोवाइड करेगा? 1 एम्पियर का बैटरी। इफ आई परचेज बैटरी ऑफ 1 एम्पियर कैपेसिटी, मैं 2 एम्पियर का भी परचेज कर सकता हूँ मेरी मर्जी। एंड इफ आई स्विच ऑन दिस बैटरी फॉर
1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर की बैटरी अगर हम 1 सेकेंड के लिए ऑन रखेंगे तो प्लस उसकी वजह से इस सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, राइट? कितने? 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। और उनके ऊपर चार्ज कितना होगा? एनीवन? और वो चार्ज कितना होगा? 1 कूलम। 1 कूलम। तो प्लस तो हम बोलेंगे, देखो सिंपल डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इज करंट इनटू टाइम। चार्ज इज आल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है? तो क्लास इफ यू पास current is equal to 1 ampere for time 1 second, the quantity of electricity passing through cell will be 1 into 1 coulomb. तो 1 ampere current अगर 1 second के लिए आप ऑन करोगे तो that electricity passing through the cell is called as the 1 coulomb. The current flowing through the cell is called as the 1 coulomb. क्लास समझा सबको? अभी प्रैक्टिकल किसने बोला था? ओम ने बोला था ना प्रैक्टिकली। तो दिस इज प्रैक्टिकल वे, समझा? हाँ सर। ओके तो क्लास अगर मुझे पूछना है आपको, मेरा बैटरी 1 एम्पीयर का बैटरी है, ठीक है, और मुझे 100 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, क्या करूंगा मैं? 1 एम्पीयर का बैटरी है और मुझे 100 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, क्या करूंगा मैं? टाइम 100 सेकंड। Time 100 seconds. 100 सेकंड्स के लिए चालू रखोगे। और 2 एम्पीयर का बैटरी होता तो 50 सेकंड्स। हाँ 50 सेकंड, ठीक है। 0.5 एम्पीयर का होता तो 0.5 एम्पीयर का होता तो 200 सेकंड। 200 सेकंड, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 1 कूलम इज इक्वल टू, तो कूलम इज unit for quantity of electricity. Coulomb is unit for quantity of electricity. If you pass 1 ampere current for 1 second, the electricity passing through the cell will be 1 coulomb. ठीक है। तो class जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। Class, what is symbol for mass? Symbol for mass is W, right? और उसका यूनिट क्या होता है? SI यूनिट kg, बराबर है? kg। तो सिंबल फॉर मास इज W और उसका SI यूनिट kg है। वैसे ही सिंबल फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सिंबल फॉर चार्ज क्या है? Q और उसका यूनिट है कूलम। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो Q उस क्वांटिटी का सिंबल है, चार्ज का सिंबल Q है और कूलम उसका क्या है? यूनिट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो क्लास का मास के लिए एक यूनिट है किलोग्राम, कोई और यूनिट है मास के लिए? ग्राम। मिलीग्राम है, ग्राम है, टन है, बराबर ना? तो ऐसे हेलो Q, हाँ बोलिए सर, वो डब्ल्यू वो क्या है? W किधर लिखा है मैंने? W मास है रे। जैसे मास के लिए यूनिट होता है kg, राइट? हाँ वैसे चार्ज के लिए यूनिट होता है कूलम। सर। हाँ, W मतलब उसके रिलेशन नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ। जैसे हम लोग मास के लिए, मास का सिंबल W, मास का सिंबल W एंड यूनिट तो प्लस जैसे मास का सिंबल kg है वैसे चार्ज का सिंबल कूलम है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बोला कि मास के लिए kg यूनिट है, मास के लिए ग्राम भी यूनिट होता है, मास के लिए हाँ, तो मास का सिंबल ग्राम है तो मास का सिंबल मिलीग्राम है। वैसे चार्ज का सिंबल जैसे कूलम है वैसे चार्ज के लिए और एक सिंबल है। एनीबॉडी नो चार्ज के लिए और एक यूनिट कौन सा है? चार्ज का सिंबल Q है और उसका एक यूनिट कूलम है, कैपिटल C। एनीबॉडी नो अदर यूनिट फॉर चार्ज? Electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। Stats coulomb. हाँ, Stats coulomb. स्टैट्स कूलम, कूलम भी होता है स्टैट्स कूलम ये नहीं, चार्ज का और एक यूनिट है। यस, सर एम्पियर पर आवर। एम्पियर पर आवर, वो एम्पियर पर आवर नहीं होता, कूलम इज एम्पियर पर सेकंड ओनली। एम्पियर इनटू सेकंड इज कूलम। अगर आपका टाइम आवर में है तो उसको सेकंड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग होगा। इट हैज टू बी ऑलवेज, इट हैज टू बी ऑलवेज करंट इनटू टाइम, करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकंड। तो क्लास बताता हूं आपको मैं। तो क्लास चार्ज के लिए और एक यूनिट है, उसका नाम है फैराडे। क्या नाम है उसका? फैराडे। तो फैराडे इज आल्सो यूनिट फॉर चार्ज। जैसे कूलम इज यूनिट फॉर चार्ज तो वैसे फैराडे इज आल्सो यूनिट फॉर चार्ज। एंड क्लास फैराडे का फैराडे, तो लॉ था ना। हाँ वही ना, फैराडे लॉ भी है ना, तो यूनिट नहीं हो सकता।
अभी न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन यूनिट होता नहीं क्या नहीं होता? हाँ सर। हाँ। तो क्लास अदर यूनिट फॉर चार्ज इज फैराडे। तो क्लास जैसे 1 कूलम्ब इज चार्ज ऑन कितना बोलो? 6.25 6.25 into 10 raised to into 10 raised to 18 electrons. So class 1 Faraday is charge on 1 mole of electron. 1 mole of electron. मतलब कितने electrons? 6.022 into 10 raised to 27. 23 electrons. डिफरेंस एक मार्क किया जाता है डिफाइन फैराडे। तो फैराडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द 1 फैराडे। तो क्लास हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड फैराडे क्विकली। तो रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड फैराडे क्लास आप इजीली ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड फैराडे। हाँ तो क्लास 1 कूलम्ब इज से 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज 1 electron carry charge 1.6 into 10 minus 19 coulomb, right? minus 1 mole 90. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to 23 मतलब ये 1 मोल भी चलेगा ना? ये 1 मोल के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज हाउ मेनी coulombs? ठीक है तो क्लास करो क्लास मल्टीप्लाई। अप्रॉक्सिमेटली करो, मुझे आंसर बताओ कितना आता है आंसर आपका आंसर। अप्रॉक्सिमेटली क्या आंसर बताओ। Yes, something what the answer? So x is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 multiplied by 6.022 10 power 23. So class coulomb per mole, right? Agree? Coulomb per mole. Yes, anybody? मुझे करना पड़ेगा क्या? मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, किसी के पास है तो कर लो कैलकुलेशन। 9.6352 into 10 raised to 4. 9.6352. 9.6353 ठीक है मेरे ऊपर 6353 आ रहा है। 52. हाँ 9.6352. 9.6352 एक मिनट देखता हूँ मैं। तो 9.6352 9.63 एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मेरे को 9 एक बार सॉरी आई एम सॉरी एक मिनट के लिए रुको। हाँ 9.6352 ना 52 बराबर लिखा मैंने। Yes sir. कूलम्ब पर मोल। तो क्लास बोल सकते हो कि 1 फैराडे इज 96352 इंटू 10 रेज़ टू कितना था? 4 था ना? 9.65 10 raised to 4. 4 ना? तो if I remove the sign 96352 तो याद बघा कूलम्ब पर मोल, राइट? आम्ही तुझी बाहेर येणार होती। कूलम्ब पर मोल ठीक है। नाही दिलेत पैसे हो। तो क्लास सॉरी एक मिनट। हाँ क्लास 9.96352 कूलम्ब पर मोल। तो क्लास फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी टेक दिस वैल्यू एज, सब बुक्स में हम लोग इसको न्यूमेरिकल लेते हैं 965, इसको अप्रोच करके हम लोग 96500 कूलम्ब पर मोल। तो क्लास का मतलब होता है 1 फैराडे। हम लोग कल वापस डिस्कस करेंगे 96500 कूलम्ब।
ठीक है क्लास, ये पूरा पार्ट मैं कल वापस एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी रुकते हैं हम लोग, कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज पूछ लो फटाफट। यस क्लास, प्लीज आस्क योर